Due to technical reason, एक बार meeting end हो इसे you can continue with your report. All right. I was talking about that he discussed various research websites such as Shodhganga, ResearchGate, PU Library, JNU Library, Ambedkar University, Delhi, NIEPA, and Azim Premji Library. He not only explained all websites theoretically, but gave the practical hand-on experience also. Towards the end of the session, he gave a brief idea on hybrid research as well. For the practical work, he gave journals to the students. Firstly, he created groups of few students and the journal was presented to them so that students could write an abstracts and students get the practical knowledge for how to do the same. Lastly, all students interacted and discussed their doubts and the abstract with Dr. Bandhu. As the resource person highlighted each and every concept related to the topic in detail, students were seen interacting and with the speaker long after the official conclusion of the workshop as well. The session ended by delivering a warm vote of thanks by Dr. Rishpal Singh, Dr. Jasleen Kaur, and Honorable Principal Dr. Pargat Singh Garsha. And that's it. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Presented. Now coming to day 5. On day 5, we have our very own Dr. Mahua Khosla, a renowned, committed, and a passionate personality in the field of teacher education. Ma'am is Masters in Mathematics in Education and a doctorate in education. She has a teaching experience of more than 3 decades. She is specialized in education research and stats, education psychology, and exclusively known for coaching students for various national testing agencies, UGC, NET, and all. Ma'am has to her credit numerous research papers and articles and has been actively taking part in number of research projects. Dr. Mahua Khosla is a hardworking, consistent, persistent, perseverant learner and teacher educator. She's an ocean of knowledge, analytical and focused. Dear students, any query that we have on research or stats, Madam is one-stop help desk, one-stop solution for all of us. Above all, she's a very warm, adventurous, enthusiastic person. Trust me, it is really a joy sitting with her. Didi, I'm not telling lies. Talk lengths and lengths about you. And at the end of any session, we recall that even if it's a general talk, we've gained so much from her. So, dear students, I would not like to take much time between you and ma'am, and I hand over this virtual dais to ma'am with this promise that she'll be soon visiting the college and giving the students a face-to-face interaction. She'll be having a face-to-face interaction. So with this promise, I hand over the discourse to you, ma'am. Please go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Manu ma'am, for such an elaborated introduction of mine, which I never know. So many qualities which I never knew earlier. Thanks to Manu, I know now. So anyways, it's just a friendly kind of like conversation between Manu ma'am and me. Now coming to my topic of discussion, that is sampling technique, and then it has been written as data collection as well. Now you see, for last few days, you have been pondering on various aspects of research.
to start with, how to select the problem, then how to formulate objectives and hypotheses, and for that, how to go through the review of related literature, so on and so forth. Now, as one thing which you have learned by now, that research is primarily a systematic and scientific attempt to find out the solution of a problem, right? Now, when we talk about scientific, systematic, it obviously tells you when it is systematic, that means it has a certain pattern of conduct. There is a pattern of conducting a research, and there are fixed order of doing the work while finding the solution. It's not about just deciding about what to do, because solution means a kind of decision making. But in research, we have to go step by step. And then scientifically means it should be database. You must have rationale for saying what you are going, what you are saying through your research, right? Now, while conducting research, purpose is to give certain, say, solution or answer which applies on the whole population. Like ऐसा है कि when you conduct a research in behavioral science like education, you take a problem pertaining to education, and then you say you are just trying to find out some problem relating to your adolescent children, right? Now, the number of adolescents, when you write that emotional intelligence of adolescent in relation to, say, decision making of career decision making of adolescent, that means you just try to find out whether emotional intelligence has anything to do with the career decision making of adolescent. Now, when you say it is emotional intelligence in relation to career decision making of adolescents. So you have these three keywords. Rest is in relation to just tell you what actually you have to do, comparing or finding relationship. Now, these two are called variables, right? And variable means which varies, right? And adolescent is your target population. It's your target population, right? Now, what you have to do through this problem of your research, you just has to find out whether emotional intelligence of adolescent has to anything to do with the, or whether it facilitates or hampers the career decision making of adolescent. That means you are here to work on adolescent. Now, adolescent, when you say adolescent, the group is, or the number of adolescent is very large, and it is practically impossible for any of the researcher to go and contact each and every adolescent and ask about and to find their level of emotional intelligence and career decision making, and then try to find out the relationship if it has any. So this adolescent, the group of adolescent basically is our target population. Since population is large, what we do is that we
go to select a sample out of this population. इसको आप ऐसे समझिए कि if you go to buy something from the market, say you just want to buy rice from the market, you cannot check each and every grain of rice to buy. You take a sample of it, simple, and then you just check whether it goes well with your parameters of buying or not. Similarly, for adolescent also, we instead of contacting and getting information from lakhs and lakhs of adolescent, we select a few number. Number is what called sample, that we will talk about later. Some adolescent, on the basis of which you will find out the relationship between these two variables, and then you generalize that result for whole population. जैसे आप थोड़े से चावल देखने के बाद ये कहते हैं ये चावल अच्छे हैं, that means the whole lot of rice is good. Just checking a small piece of cloth, you say that this is good. That is the same way we select few people, and then on the basis of the result obtained from them, we generalize or predict that the result goes with the whole population of adolescent. So here we are now today basically is going to talk about sample. And when we talk about sample, three terms actually comes: universe, then is population, and the third is sample. You see, universe is the term which is not very prominently or importantly mentioned in most of the books, or it's never in the mind of the researcher that they have to talk about the universe. So I am here because most of the students are MN student. They need not to go very elaboration for the term universe. Then just क्लास है, आप चलिए, आपको अच्छा ठीक है. तो then you see, universe, now just to explain very briefly about the difference between universe and population. You see, for example, you are going to study some problem pertaining to university teachers of say Punjab. Excuse me, दीदी, दी थोड़ा जब हिंदी बोलो तो bilingual हो जाओ प्लीज. speak in हिंदी also. हिंदी भी बोलो थोड़ी सी. अच्छा ठीक है, मैंने सोचा ओके अब नहीं, आप थोड़ा बीच में bilingual हो जाओ. कंफर्टेबल हूँ. मैंने सोचा सारी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में थी, शायद मैं भी इंग्लिश की बोल रहा हूँ. चलो मैं बाद में बात करूंगी आपसे. अच्छा मैं दोबारा तो जब हम कभी भी रिसर्च जैसे आपने किया कि रिसर्च किसी समस्या का एक सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन है, तो मैंने जैसे एग्जांपल लिखा कि आप ये पता करना चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का करियर डिसीजन मेकिंग ऑफ एडोलेसेंट से कोई संबंध है या नहीं. अब इसमें तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक करियर डिसीजन मेकिंग. इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. दैट मींस रिसर्च इज स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और डिफरेंस. ये डिपेंड करता है कि हमारे स्टडी का व्हाट इज द टॉपिक ऑफ आवर रिसर्च. एंड थर्ड इज, जो तीसरा है वो हमारा टारगेट ग्रुप है. हमने यहाँ कहा एडोलेसेंट, तो इसका मतलब मैंने
इमोशनल इंटेलिजेंस और करियर डिसीजन मेकिंग एडोलेसेंट के पर्सपेक्टिव में देखनी है, नो अदर। अब आपने क्या किया, एडोलेसेंट को डिफाइन कर दिया। मान लीजिए आपने कहा कि एडोलेसेंट को मैंने टीन एज माना है एंड क्रोनोलॉजिकली वो 13 से 19 साल वाले बच्चे जो है वो एडोलेसेंट हो गए, फाइन। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है तो सुनने में ऐसा लगता है कि आपको सब एडोलेसेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस देखना है एंड देन उनका करियर डिसीजन मेकिंग, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में उनके कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी डिसीजन करियर डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाती है या उसके रास्ते में रुकावट डालती है। अब बच्चे एडोलेसेंट जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। लाख करोड़ों में हमारे 13 से 19 साल के बच्चे हैं। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो लार्ज पॉपुलेशन इज देयर। अब एक ऐसी बात नहीं कि आप कांटेक्ट कर नहीं सकते, पर एज ए रिसर्चर हमारे लिए बच्चे ये फिजिबल नहीं होता कि हम इतने लोगों को कांटेक्ट करके लाखों लोगों से ये डेटा कलेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ले लेते हैं। वो जो रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन पॉपुलेशन का होता है उसको हम सैंपल कहते हैं। सो सैंपल रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को ऑन जो वेरिएबल आप ले, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इज आपकी भाषा में कहूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्च की भाषा में कहूं तो क्राइटेरियन वेरिएबल है, प्रेडिक्टर वेरिएबल है, तो वो प्रेडिक्ट करेगा करियर डिसीजन मेकिंग को। अब आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि आप कह सकें कि ये सारे एडोलेसेंट के लिए ठीक है। अगर आप ऐसे लोग ले लें जो हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है और उसके बेसिस पर अगर आप ये बताते हैं कि यस इमोशनल इंटेलिजेंस का करियर डिसीजन मेकिंग पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा कि आई मीन मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पुअर है पर आपने मेरे जैसे लोग तो सिलेक्ट ही नहीं किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सैंपल लेंगे, जैसे मैंने कहा अगर आपको चावल खरीदने हैं जिस बोरी में से खरीदेंगे उसी के चावल चेक करेंगे ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं और का चेक करके यहाँ से खरीदना शुरू कर दें। तो आपका सैंपल जो है वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, नंबर 1। और किन वेरिएबल्स पर, स्पेशली आपका इंडिपेंडेंट एंड साथ में इंटरमीनिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। नॉट गोइंग फॉर इंटरमीनिंग एक्सट्रेनियस क्योंकि वो बहुत बड़ा होगा एक्सप्लेन करना। अभी मैं जब हम बात करते हैं सैंपल की, पॉपुलेशन की, तो एक और टर्म किताबों में नजर आएगी, वो है यूनिवर्स। मैं सिर्फ ब्रीफली ये एक्सप्लेन करती हूँ कि यूनिवर्स, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन एक ही बात होती है। बच्चे हो सकती है वो एक हो पर जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा कि मेरा टारगेट ग्रुप यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ पंजाब है। अब पंजाब में 22 यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। आपने उनकी वेबसाइट पे जाके देखा कितनी कितनी पोस्ट है उनमें, राइट। और आपको पता चला कि टोटल 12,000 पोस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टीचर की है, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, रैंक पोलियो 12,000 है। तो ये 12,000 आपका यूनिवर्स हो गया, राइट। पर जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज में गए तो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में अभी हर यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ पोस्ट खाली बनी है, राइट। तो मान लीजिए 10,750 ही आपको यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटीज में 10,750 टीचर्स थे जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त काम कर रहे थे। रेस्ट ऑफ द पोस्ट जो है वेकेंट थी। अभी बच्चे आप कॉलेजेस में भी देखेंगे सैंक्शन पोस्ट एंड अदर पोस्ट मिला के सारी नहीं भरी होती तो वेकेंट होती है। तो जो अगर कॉलेज की 15 सैंक्शन पोस्ट है वो यूनिवर्स हो गया, पर क्योंकि इस वक्त 12 टीचर अपॉइंटेड है तो 12 हमारा पॉपुलेशन हो गया, राइट।
हो सकता है सारी भरी हो तो बराबर होगा। सो इतना ही आपको यहाँ बताना, हमारा जो सैंपल है वो हमेशा पॉपुलेशन से आता है, यूनिवर्स हैज नथिंग टू डू विद इट, राइट। तो इसलिए पीएचडी लेवल पर बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है कि यू गो फॉर द यूनिवर्स। एमएड के लिए वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू गो फॉर इट। तो आपके पास 10,750 है। अब आप 10,750 लोगों के पास, यू कैन नॉट गो, दिस इज नॉट पॉसिबल एज एमएड स्टूडेंट टू गो फॉर ईच एंड एवरीवन एंड कलेक्ट द डेटा। देन व्हाट डू यू से कि ऐसा है कि मैं थोड़े लोगों से, अब थोड़े कितने, उसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक साइज ऑफ द सैंपल आ जाएगा एंड देन व्हिच पीपल यू विल सिलेक्ट। जिनको आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका सैंपल बन जाएगा, राइट। सिलेक्शन की जो टेक्निक होगी कि आपने इन 200-300 लोगों को सिलेक्ट कैसे किया, वो आपका सैंपलिंग टेक्निक बन जाएगा। So you can understand that sample is basically the number of people or persons, वो लोग जिनको डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया गया वो हमारा सैंपल है। और जिस तरीके से उनको सिलेक्ट किया, बच्चे आपने 750 में से 500 लोग सिलेक्ट किए, कोई तो टेक्निक लगाई होगी ना, तो वो टेक्निक आपकी सैंपलिंग टेक्निक हो जाती है। और रिसर्च में ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एक टर्म आती है यूनिट, सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट जो हमारा होता है वो ये होता है कि आपने किसके बिहाफ पर डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप एडोलेसेंट से एज इंडिविजुअल लेवल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपका सैंपल यूनिट एडोलेसेंट इंडिविजुअल हो गया। अब अगर आप कॉलेजेस में जाकर कॉलेज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, से आप मालवा कॉलेज आए, से आप गुरु सिद्धार्थ कॉलेज गए, सिल्वा कॉलेज गए, वहां पूरे कॉलेज के बिहाफ पर एक पर्सन आपको इंफॉर्मेशन देगा जो कि प्रेफरेबली प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होगा। तो चाहे आपका इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन है, पर सैंपल यूनिट एक बंदा पूरे कॉलेज के लिए, एक बंदा यानी प्रिंसिपल हो जाएंगे, राइट। आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपका टारगेट टीचर नहीं, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ है, करिकुलम कुछ भी, तो इन दैट केस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और whosoever is authorized for, वो आपका सैंपल यूनिट होगा। तो जब आप डेटा सैंपल की बात करते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सैंपल आएगा कहाँ से और सैंपल यूनिट कौन है, किसके भी आप इंफॉर्मेशन किसके बिहाफ पे ले रहे हो। आप मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन माय बिहाफ ले रहे हो तो मैं सैंपल यूनिट हूँ, पर अगर ऑन बिहाफ ऑफ मालवा कॉलेज मेरे से पूछ रहे हो तो मालवा कॉलेज सैंपल यूनिट हो जाता है। एंड एज अ वर्कर और पर्सन वर्किंग इन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो जाता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी हमारा सैंपल यूनिट बन जाता है। तो एक ये बेसिक सी बात। नाउ कमिंग टू अगेन पॉपुलेशन एंड सैंपल। रिसर्च में यही दो टर्म्स हैं। Then one population वो ग्रुप जिसके बारे में आपने अपना रिजल्ट देना है या आपकी स्टडी जिसको एड्रेस कर रही है वो पॉपुलेशन है, और जिनसे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो आपका सैंपल है। अब सैंपलिंग करनी कैसे है या साइज क्या होगा, उससे पहले आपको काम करना होगा पॉपुलेशन को। अब देखिए पॉपुलेशन दो तरह की होती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड फाइनाइट पॉपुलेशन। बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप बैठे होंगे कई, उनके लिए इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, राइट, और फाइनाइट जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वेयर एज इन रिसर्च फाइनाइट या इनफाइनाइट होना मैनेजेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
मैनेजेबिलिटी, लिस्ट मैनेजेबिलिटी, आप उसकी लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं तो वो फाइनाइट है, अगर नहीं कर सकते यानी लिस्ट नहीं बना सकते तो इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मान लीजिए अगर इंडिया में आधार कार्ड हर बंदे का बन जाए पैदा होते ही, तो इंडिया की पॉपुलेशन अरबों में होने के बावजूद भी हमारा पॉपुलेशन इंडियन फाइनाइट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर आधार कार्ड, राइट। वेयर एज चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वेयर एज थीव्स इन लुधियाना, लुधियाना के चोर, अब बच्चे चोर तो जो पकड़े गए वो उनका हमें पता है, पर जो पकड़े नहीं गए उनकी तो लिस्ट हम बना नहीं सकते। दैट मीन्स लिस्ट मैनेजेबल, चाहे चोर थोड़े हैं, इंडिया के एडोलेसेंट पॉपुलेशन से कहीं कम लुधियाना के चोर हैं, इसके बावजूद भी इंडिया के एडोलेसेंट अगर हर एक का आधार कार्ड बना है तो उसकी मैनेजेबिलिटी रहेगी, हम गवर्नमेंट पोर्टल से उनके आईडीज ले सकते हैं, तो वो फाइनाइट में आ जाएगा। वेयर एज क्योंकि चोर कितनी भी कोशिश करेगा पुलिस रिकॉर्ड में भी पकड़े चोर ही आएंगे, इसलिए उसकी लिस्ट मैनेजेबिलिटी नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। अब बच्चे एक टर्म आती है सैंपल फ्रेम। सैंपल फ्रेम वो लिस्ट होती है जिसमें से सैंपल सिलेक्ट होता है, जैसे फोटो फ्रेम नहीं होता, फोटो इसी के फ्रेम के अंदर ही रहेगी, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगी। दैट मीन्स आपका जो लिस्ट है ऑफ पॉपुलेशन वो आपका फ्रेम है, आउट ऑफ विच यू हैव टू पिक द, आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, राइट। अब बच्चे जब हम सैंपल फ्रेम की बात करते हैं दैट मीन्स लिस्ट होनी चाहिए मेरे पास। अब लिस्ट तो बच्चे तभी होगी जब मेरी पॉपुलेशन फाइनाइट होगी, राइट। अब अगर मेरी इनफाइनाइट है तो मैं क्या करूं, तब हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कह देते हैं, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो सकती। टारगेट पॉपुलेशन मैंने क्या किया, टारगेट पॉपुलेशन को असेसेबल पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, माने कि जिसका एक्सेस है। अब जैसे एडोलेसेंट है बच्चे, वो इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि अभी हमारे देश में हर एडोलेसेंट का आधार कार्ड नहीं है। अब हर एडोलेसेंट को हम कैच नहीं, लिस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे यहाँ आप जन्म मरण वाले उसमें जाए खाता वहां से पता करें, दैट इज वेरी कुंबरसम। तो हम क्या करते हैं कि देखिए हमारे लिए इनफाइनाइट है, आई कैन नॉट मैनेज द लिस्ट, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हर एडोलेसेंट का, क्योंकि सारे तो मैंने क्या किया, इसको एक्सेसिबिलिटी में मैंने ये ले लिया कि स्कूल गोइंग एडोलेसेंट, ठीक है। स्कूल गोइंग एडोलेसेंट 13 से 19 साल के जो स्कूल में जाते हैं। अब अगर वो किसी स्कूल में जाते हैं तो बोर्ड में उनका नाम है स्कूल के, आपको पोर्टल पे अलग अलग, आजकल तो इतना ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, यू कैन गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द एडोलेसेंट हु आर गोइंग स्कूल। तो इससे क्या हुआ कि जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बेगावांड है, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, उनको क्योंकि आप ढूंढ नहीं सकते, इसलिए आपने वो टोटल एडोलेसेंट आपके लिए इनफाइनाइट, बिकॉज मैनेजेबिलिटी नहीं थी, आपने उसको मैनेज करने के लिए उसको डिफाइन कर दिया कि मेरे लिए एडोलेसेंट 13 से 19 साल के वो बच्चे हैं जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये जो मैनेज करने का और मैनेज करने के लिए ये जो आपने पॉपुलेशन को दोबारा से डिफाइन किया, आपके टॉपिक में वो पॉपुलेशन एडोलेसेंट था, पर आपने अंदर कहा कि मेरे एडोलेसेंट वो है जो 13 से 19 साल के स्कूल जा रहे हैं। ये जो डिफाइन करते हैं इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन
हर वेरिएबल की होती है, पर यहाँ क्योंकि हम पॉपुलेशन और सैंपल की बात कर रहे हैं तो हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ऑपरेशनल डेफिनेशन बच्चे वो डेफिनेशन होती है जो मैंने अपनी रिसर्च में ली है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चे कई टर्म्स होती हैं विच इज जो यूनिवर्सल होती हैं, जैसे जेंडर है। जेंडर पहले कभी डिफाइन नहीं किया, ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाता था, क्योंकि तब जेंडर का मतलब मेल और फीमेल या फीमेल, बॉय या गर्ल होता था। आजकल इसको इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि लीगली ट्रांसजेंडर्स को मान्यता है, इसलिए अगर आप ट्रांसजेंडर नहीं ले रहे तो आपको डिफाइन करना पड़ता है अपनी रिसर्च में कि मेरे लिए जेंडर का मतलब मेल एंड फीमेल है, ट्रांसजेंडर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आजकल स्कूल हर फॉर्म में आपको मेल फीमेल के साथ थर्ड जेंडर का ऑप्शन होता है। दैट मीन्स आप वो जेंडर नहीं ले रहे, क्योंकि अभी भी हम मेंटली उसके लिए तैयार नहीं होते। हमारा मतलब जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल है, पर आज के दिन में यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड व्हेन यू से जेंडर, तो इसका मतलब मेल फीमेल होगा। आपको उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि मेरे लिए जेंडर मेल और फीमेल है, और ट्रांसजेंडर विल नॉट बी कंसीडर्ड। अब आपने क्या किया कि आपने एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन को फाइनाइट यानी एसेसिबल पॉपुलेशन का मतलब है आपने इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी लिस्ट की मैनेजेबिलिटी है। उसके बाद उसमें से जिसकी लिस्ट बन सकती है, आपका सैंपल जो है वो उस पॉपुलेशन में से लिया जाएगा, ना कि जो ऊपर डिफाइंड टर्म ऑफ एडोलेसेंट है जो उसमें से नहीं स्कूल गोइंग एडोलेसेंट लिए जाएंगे। राइट, अब बात करते हैं कि ये तो हुआ सैंपल कि हमने लेना कैसे है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सैंपल पॉपुलेशन से ही आना चाहिए, नो यूनिट शुड बी आउटसाइड योर पॉपुलेशन। और जो वो लिस्ट है जिसमें से आप लोग उठा रहे हैं उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। अब बात आती है कि हमने सैंपल को सिलेक्ट करना कैसे है। That there comes the concept of sampling technique। वहां आता है सैंपलिंग टेक्निक। अब बच्चे, सैंपलिंग टेक्निक ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह की है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। राइट, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस है ना। चांस आप कैसे निकालेंगे, मेरा कितना चांस है फर्स्ट आने का। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं मैम, चांस तो उसी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन का पता जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। राइट, अगर एक ही मैं ही सिर्फ पेपर दे रही हूँ तो मेरा 100% चांस है मैं फर्स्ट आऊं। अगर 50 बच्चे दे रहे हैं तो मेरा चांस 1/50 हो गया, और अगर 10,000 दे रहे हैं तो मेरा 1/10,000 हो गया। तो मेरा चांस तो इस पे डिपेंड किया। और माने प्रोबेबिलिटी कैन बी ascertained only if you have the size of the population आपको पता हो। That means आपके पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स जो है वो होने चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जा सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी होता है उन केसेस के लिए जहां हमारी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है या मैंने लिस्ट बना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं लिस्ट बनाऊं, या मेरे पास नो सैंपलिंग फ्रेम है, मैं बनाना नहीं चाहती सैंपलिंग फ्रेम बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम, मैं एमएड कर रही हूँ, आई डोंट थिंक दैट इसकी जरूरत भी है, तो मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में चली जाऊंगी। बच्चे, कभी भी ये नहीं है, लोगों का ये मानना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बहुत अच्छी है, नॉन प्रोबेबिलिटी बहुत बुरी है। राइट, पहली बात सैंपलिंग करनी क्यों है बच्चे, ये टाइम सेव करती है, मनी इकोनॉमिकल है, टाइम मनी एनर्जी सब सेव हो जाता है। आपको अगर ये पता करना है कि एमएड का अगला पीरियड किसका है या कल किसका लेक्चर होगा फॉर एग्जांपल,
तो बजाय आज जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे बारी बारी पूछूं कल कितना लेक्चर है, कल कितना लेक्चर है, लास्ट कोऑर्डिनेटर मैं मनु मैम हैंडल कर रही है, तो मैं इनसे पूछ लूंगी कि मनु मैम कल कौन लेक्चर दे रही है। तो मैं आज अभी 46 लोग अगर ज्वाइन किए हैं, 45 लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि कल किसका लेक्चर है, आंसर तब भी होगा, और अगर मैं मनु मैम अकेले से पूछ लूं तब भी होगा। तो व्हाई शुड आई वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन आस्किंग एवरीवन। सो पहली बात, सैम्पलिंग कभी बुरी नहीं होती, नॉट दैट के सैंपल बढ़ाओ जी, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च में इतने मिथ्स के साथ और इतनी like we go with so many kind of reservations के साथ हम चलते हैं, which is not very appropriate. So पहली बात कि non probability is nothing wrong about it, बस डिपेंड करता है आपके पास लॉजिक, आप क्यों नॉन प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं। तो आप बताइए कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, मेरे पास फ्रेम नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू, इसलिए मैं नॉन प्रोबेबिलिटी में जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी आपके पास फ्रेम है, यूनिवर्सिटी टीचर्स लिस्ट लेने में क्या दिक्कत है, आप लिस्ट लीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर इट। बट अब आते हैं इन दोनों मेन हेड्स के अंदर, सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास हर यूनिट का एक यूनिक आईडी होता है, लिस्ट मतलब यूनिक आईडी, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं अलग अलग टेक्निक्स की जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंडर आते हैं, राइट। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम नॉन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, तो बहुत इजी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कॉल्ड रिसर्चर्स सैंपलिंग। मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि जिस सैंपलिंग में टोटल से रिसर्चर का है वो तो हुई नॉन प्रोबेबिलिटी, और जिसमें रिसर्चर की मर्जी चल ही नहीं सकती, वो ना किसी को इन कर सकता है ना किसी को आउट कर सकता है, वो सैंपलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी पे जाएगी, क्योंकि वो तो लिस्ट है ना। अगर आपको कहा आज क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है उनमें से 5 बच्चे सिलेक्ट करें, आपका अपना बच्चा उस क्लास में है, यू कैन नॉट मेक हिम और हर इन, क्योंकि वो है नहीं है, लिस्ट है, इसी में से चूज करना है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपकी मर्जी है, जिसका मर्जी नाम लिखे। अब नॉन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो कुछ एक तो होती है कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग इज, कन्वीनियंट सैंपलिंग वो है जो मेरी कन्वीनियंस, मैं ऋषिनगर में रहती हूँ, मैं ऋषिनगर केवीएम मेरे स्कूल के घर के पास पड़ता है, मैं कहूँ मैं केवीएम से डाटा कलेक्ट कर लूंगी या आसपास जो 1-2 स्कूल हैं उनसे कलेक्ट करूंगी, मेरी कन्वीनियंस है। तो इसका मतलब ये हुआ जो केवीएम में पढ़ता है उसका चांस है, जो डीएवी में पढ़ता है उसका कोई चांस नहीं कि उससे कुछ भी पूछा जाए। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड दिस इज आल्सो गुड इफ इट गोज वेल विद यू। बट बच्चे एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक्चुअली तब होती है जब हम सैंपलिंग करते हुए ये assumption ले लेते हैं कि ऑल यूनिट्स आर अलाइक, मतलब सारे यूनिट एक से हैं। साइकोलॉजी की माने तो नो टू पीपल आर अलाइक, इसलिए उस केस में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के फेल होने के चांसेस होते हैं। अगर तो सारे एक जैसे हैं, एक ही बोरी में से चावल लेने हैं, इधर से उठा लो उधर से उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, उसी बोरी का है। थान है कपड़े का, कहीं से पूरा खोल के पाली पिछो कट दो या शुरू चो कट दो, वही डिजाइन रहना है, डजंट मैटर। वहां तो क्योंकि सारे यूनिट एक जैसे हैं, वहां गो हेड विद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या जरूरत है लिस्टें बना बना के आपको करने, व्हाई टू पुट ऑन एफर्ट्स। बच्चे इंटेलिजेंट वर्क वो है जो कम से कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट दे सके। सो आपको अपनी पॉपुलेशन को समझना है, दैट्स इट, सैंपल अपने आप ही सही आ जाएगा। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक तो कन्वीनियंट हो गई, दूसरी पर्पसिव और जजमेंटल। पर्पसिव और इसको जजमेंटल भी कहते हैं। बच्चे इसमें आप अपना पर्पस देखते हो, आपने कहा मैंने क्रिएटिविटी पे रिसर्च करनी है, आपने शुरू की क्रिएटिविटी का डेटा कलेक्ट करने, गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। जब आपने गवर्नमेंट स्कूल की स्कोरिंग करी
तो आपने देखा कि उनका, आपने बेकर मेहंदी का फॉर एग्जांपल बेकर मेहंदी का टेस्ट लगाया, उसकी स्कोरिंग इस तरह की है कि 5% से ज्यादा लोग अगर सेम आंसर देते हैं तो उनको 0 स्कोर कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो क्रिएटिविटी है उसका स्कोर 0, 1, 2, 3 ऐसे आता है, राइट। आपने निकालना था कि पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी में क्या रिलेशनशिप है। अब पर्सनालिटी का स्कोर आ गया, क्रिएटिविटी 0, 1 पे खड़ी है, रिलेशनशिप क्या निकालेंगे। फिर आपने अपना दिमाग लगाया यार गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं बहुत ही क्रिएटिविटी नहीं होंगी, मैं सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल डीएवी सतपाल मित्तल और जो भी है, मैं तो इनमें जाऊंगी क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी और क्रिएटिविटी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां से डेटा मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, अपना पर्पस देखा, जजमेंट यूज की। अब बच्चे जैसे ड्रग एडिक्ट्स पर आपने रिसर्च करनी है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर घर का दरवाजा खटका के पूछो तो घर कोई ड्रग एडिक्ट है, वो मार मार के भगा देंगे। आप क्या करोगे, आप जाओगे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, जहां लोगों ने अपनी डी एडिक्शन के लिए एनरोल किया है। आप उनसे लिस्ट लोगे, उनके घर जाओगे, डाटा कलेक्ट कर लोगे। तो ये आपका पर्पसिव सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग होता है। देन इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। इंसिडेंटल सैंपलिंग, बच्चे इंसिडेंटल सैंपलिंग होता है बाय चांस। आपको डाटा कलेक्ट करना था 9th क्लास स्टूडेंट से, पीएचडी कैंडिडेट से, आपके घर में आपकी मासी आई, उनके साथ कोई रिश्तेदार था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ना पीएचडी कर रही है। आपने कहा लो आंटी मेरा फॉर्म उन्होंने भी दे दियो, 5 होर लै जाओ, उन्होंने सहेलियां तो भी पढ़वा देंगे। व्हाट इज दैट, दैट इज इंसिडेंटल सैंपलिंग, राइट। इसको एक्सीडेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसिडेंट तो आपका है ना, उनका तो एक्सीडेंट ही है, बेचारे 10 फॉर्म लेके आपके घर से जा रहे हैं, राइट। तो वो इंसिडेंटल हो गई। देन इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग बच्चे ऐसा होता है, आपने कोटा फिक्स कर दिया, मैं 100 बॉयज लानी है, 100 बॉयज 100 गर्ल्स, राइट। ਜਦੋਂ 100 ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ लड़का सी, ਉਹਨੇ किया मैं भी भर दूंगा कुछ का, ना मेरे 100 होते हैं, रिक्शे वाले सोए होते हैं, आप कहते हो भैया जी चलता होता तक मैं नहीं जाना, क्योंकि उसने जितना दिन में कमाना था कमा लिया, उसका कोटा पूरा हो गया। दैट इज व्हाट कोटा सैंपलिंग। जब आपका पूरा हो जाए आपने कहा मैं नहीं जाना। Another is which is called snowball sampling. ये बच्चे हम लोग नहीं यूज करते, ये वैसे तब होता है जब आपका सैंपल बहुत ही छोटा है एंड अननोन है। जैसे खबर आती है ना अखबार में, थीफ गैंग बस्टेड, चोरों का गैंग पकड़ा गया, तो आपको क्या लगता है चोरों का गैंग एक जगह बैठ के चाय पी रहा था कि कब पुलिस आए इकट्ठे पकड़ ले। एक चोर पकड़ा जाता है, एक चोर से उसके बाकी साथियों का नाम पता करते हैं, उससे उसके आगे का पता चलता है क्योंकि लिमिटेड है, गैंग कितना को बड़ा होगा। तो ये स्नोबॉल होती है। स्नोबॉल होती है जैसे बर्फ का गोला, बर्फ लगाते जाओ बढ़ता जाता है। इसकी दिक्कत ये होती है, ये वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में यूज होता है। ये इसकी दिक्कत ये होती है, मान लो आपने पहला चोर पकड़ा, उसको बड़ा मारा, उसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया, आपका सैंपल आगे नहीं चल सकता। पर हमारे बिहेवियर साइंस में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि हम स्नोबॉल सैंपल करें। ये तो थी हमारी नॉन वर्बलिटी। इसमें देखिए सारा कुछ आपकी मर्जी से है, जिसको मर्जी रख लो, जिसको मर्जी निकाल दो, मैं तेरा डाटा नहीं करवाना, इट्स ओके, नहीं करवाओ। अब आ गई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो टोटल मैथमेटिकल है और उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है, राइट। आपके पास इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, लिस्ट यानी सैंपलिंग फ्रेम अपडेटेड और कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। अब इसमें हमारे पास एक तो आती है रैंडम सैंपलिंग। अच्छा ये रैंडम सैंपलिंग रिसर्चर को बड़ी पसंद है, जिसको देखो वो लिख रहा होता है रैंडम सैंपलिंग हैज बीन डन। अच्छा रैंडम सैंपलिंग इज नॉट नीदर द बेस्ट ऑप्शन नॉर द फिजिबल ऑप्शन। बहुत रैंडम सैंपलिंग को आप ऐसा समझे कि लेमैन की भाषा में समझाऊं तो लॉटरी सिस्टम है। अब आप सोचो आपका पॉपुलेशन 10,000 का है, 10,000 की पर्चियां लिखोगे, फिर वो घुमा घुमा के निकालोगे, वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ। आजकल
ठीक है कि रैंडम नंबर टेबल्स यूज होते हैं, एक्सेल जनरेट करता है, हम उनसे भी यूज कर लेते हैं, बट देन इट्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ। और रैंडम की एक ही कंडीशन है, हर एक यूनिट इक्को जिया होना चाहिए, मतलब कोई फर्क ना होवे, ताकि मैं आऊं या आप आए एक ही जैसे। जहां बच्चे हेटेरोजेनिटी होती है, लाइक डिफरेंस बहुत है, फॉर एग्जांपल आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए रैंडम सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, आपको लगा कि रैंडम तो बड़ी इज्जतदार सैम्पलिंग है, लिखांगे बड़ा रोग होगा, तो आपने कहा कि मैंने रैंडम सैम्पलिंग की। बच्चे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अंबानी है, हम हैं और भिखारी हैं, कितना ज्यादा रेंज ऑफ डिफरेंस है, हेटेरोजेनिटी है। वहां एलाइट कहाँ है? भीख मांगने वाला सड़क पे और अदानी अंबानी वो बराबर हो नहीं सकते। अब आपने पर्चियां उठा ली, अब रैंडम में क्या है, पर्ची के चांस भी उसके होंगे जिसका जिसका जो साइज है वो ज्यादा है, माने मिडिल क्लास ज्यादा है ना हम लोग, तो आप पर्चियां उठाओगे ज्यादा चांस होंगे मिडिल क्लास ही उठाई जाए। कोई वेरी टॉप 5% जो हमारे रिच पीपल है, हो सकता है उनकी किसी की पर्ची ना आए, तो हमारी सैंपल की रिप्रेजेंटेशन कहाँ से हुई बच्चे? दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस में, दो कंडीशंस जब हो तब यूज होती है। नंबर 1 के हमारे पास कंप्लीट लिस्ट हो, और नंबर 2 ये के उसमें हर एक यूनिट बराबर हो। अब जैसे बीएड के स्टूडेंट से आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने क्या किया, लिस्ट ली, पर्चियां उठानी शुरू की, आपको 100 पर्चियों के बाद पता लगा कि 100 से 100 कुड़ियां ही हैं, क्योंकि बीएड में तो है ही गर्ल्स ज्यादा, बॉयज बहुत ही कम है। अब आपके पास, आपने तो हाइपोथेसिस बनाया था, देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग्स। अब बॉयज तो सिलेक्ट ही 2 हुए हैं, उस तरफ गर्ल्स जो हैं वो 99 आ गई, तो वो that won't give you any concrete result about it. तो ऐसे केस में you cannot go for random sampling. Random की कंडीशन है होमोजेनिटी की, अगर हेटेरोजेनिटी है तो go for stratified sampling. Stratified sampling. Stratified में क्या करते हैं हम, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बॉयज अलग कर लिए, गर्ल्स अलग, बॉयज के 100 अलग उठा लिए, गर्ल्स के 100 अलग उठा लिए। सो दैट वुड बी ओके। जितना सोशियो इकोनॉमिक में वेरी पुअर, पुअर, एवरेज और मीडियोकर, एंड देन हेलो, हाँ जी दीदी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ मैं तो ऑडिबल हूँ। कब बंद करना है मुझे बता दोगी? बच्चों में हलचल शुरू हो गई। सर मैं ब्रीफ करके, लाइक सो हेटेरो को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करके हम सिस्टमैटिक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अलग अलग, ये जो ग्रुप बना लिए बॉयज के, गर्ल्स के या सोशियो इकोनॉमिक हाइपो, इनको हम लोग स्ट्रैटा कहते हैं। सिंगल हो तो स्ट्रेटम यूज होता है। देन इज another है sequential sampling. Sequential sampling में आपने लिस्ट फाइंड, sequential में क्या होता है कि ये फास्टेस्ट है, सब तो बढ़िया, ये फ्रेम हैगा तो देखो ता दिस इज द बेस्ट, आपका 1 2 10,000 तक के लोग, ये इसका मतलब आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन 10,000 है। आपने सोचा मैंने 1000 का सैंपल लेना है, ये सैंपल साइज हो गया। आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन को सैंपल साइज से डिवाइड कर देंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका मतलब 10 आ गया। अब क्या करेंगे, आप 1 से 10 नंबर लगा के 0 to 9 लेकर आप कोई भी रैंडमली एक पर्ची उठा लेंगे। मान लीजिए आपने जब पर्ची उठाई 8 आ गई, अब 10 के फर्क, ये 10
10 के फर्क पे 18वां मंदा, 28वां, 38वां ऐसे चलेंगे तो आपके पास 1000 लोग आ जाएंगे। सबसे आसान है, पर इसके लिए कंडीशन ये होती है लिस्ट पूरी होनी चाहिए। नॉर्मली होती नहीं, इसलिए हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो लगाते ही नहीं। वैसे भी इसकी थोड़ी सी सिस्टम, ये था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, सो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है एंड इसमें सिर्फ दिक्कत ये होती है कि हमारा थोड़ा मैनेजेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन की हमें जरूरत होती है, राइट। देन this is basically our not sequential, this is our systematic sampling। sequential तो इसमें चला जाता है, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई। इसके अलावा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं बच्चे रिसर्च में, वो क्लस्टर सैम्पलिंग, दैट इज वन इज क्लस्टर। क्लस्टर में क्या है, एक ग्रुप उठा लेते हैं, जैसे एडोलेसेंट लिया 13 से 19 साल, फिर आपने कहा मैं 9th क्लास स्टूडेंट लेना, तो 9th क्लास बच्चे आ गए 13 तो 19, पर किसी को ग्रुप चक्किया बाद रैंडमली ਉਹਦੇ ਚੋਂ सिलेक्ट कर लिया, राइट। एरिया क्लस्टर होता है, अगर एरिया इंडिया आपने लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट करेंगे, तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट आपका क्लस्टर हो गया, डाटा उसी में से, तो आपने इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में ये होता है कि आप कई स्टेजेस में ऐसे है, आपने कहा है इंडिया 4 रीजन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 रीजन है, एक पर्ची चक्की नॉर्थ आ गया। नॉर्थ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ स्टेट्स है सारियां ने पर्ची पाई, एक स्टेट पंजाब ਚੱਕੀ। पंजाब ਚ जितने डिस्ट्रिक्ट है ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 डिस्ट्रिक्ट है, हर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ਦੇ नंबर ऑफ स्कूल्स लेके हर एक चों 5 स्कूल है, ਉਹਨਾਂ स्कूल से गए, रैंडम सिलेक्शन की थी and you got the sample। so this is multi state sampling। हम नॉर्मली क्लस्टर, मल्टी स्टेट बेसिकली क्लस्टर की एक्सटेंशन होती है, जब आप बहुत बार क्लस्टर लेते हैं तो वो मल्टी स्टेज बन जाती है। और इनमें so you can go with any of the sample, you should be very clear about writing how you did it and कैसे किया है, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक, ये आपको बताना पड़ता है। सो ये था हमारा सैम्पलिंग टेक्निक कि हमने सिलेक्ट कैसे करना है। एंड देन कम्स द साइज ऑफ द सैंपल। बच्चे सैंपल साइज सिलेक्ट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, राइट। सैंपल साइज अगर मैं देखिए, हमारी पॉपुलेशन जो है, या तो उसमें दो बातें सैंपल में जो मोटा मुझे 5 मिनट में मैं इसको खत्म करती हूँ। हमारे पॉपुलेशन का या इनफाइनाइट होगी, हमने बात करी, या फाइनाइट होगी। एक बात तो ये है जो आपके सैंपल सिलेक्शन में रोल प्ले करती है, और दूसरा है कि आप डेटा कैसे ले रहे हैं। कंटिन्यूअस डेटा, आपका डेटा कंटिन्यूअस है, जिसको हम लिकर्ट स्केल कहते हैं। लिकर्ट स्केल, वो जो 5-1 स्केल होता है ना, स्ट्रांगली एग्री वाला, अगर आपने कोई टूल लगाकर जो लिकर्ट स्केल पे बना है, कंटिन्यूअस डेटा लिया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, इनफाइनाइट पॉपुलेशन कंटिन्यूअस डाटा, फाइनाइट पॉपुलेशन कंटिन्यूअस डाटा। दूसरा है कि आपका कैटेगोरिकल डाटा हो। कैटेगोरिकल डाटा होता है जिनमें आप एमसीक्यूज यूज करते हैं। एमसीक्यूज, यस नो, डू यू गो देयर, नॉट गो देयर, तो उस तरह के इसमें फिर कैटेगरी 2 है, 3 है, 4 है, ये डिपेंड करती है। इट्स अ लिटिल बिट लार्जर वन ऑफ डिस्कशन, पर 4 ऑप्शंस होते हैं, फाइनाइट कंटीन्यूअस, इनफाइनाइट कंटीन्यूअस डाटा, फाइनाइट कंटीन्यूअस डाटा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन कैटेगोरिकल डाटा, फाइनाइट पॉपुलेशन कैटेगोरिकल डाटा। और सैंपल साइज अगर बिना फॉर्मूले के, पहला तो हमारा Z
वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि 0.05 पर हमेशा 1.96 होता है, ये तो फिक्स है, राइट। दूसरा सिग्मा, सिग्मा पे डिपेंड करता है हमारा। और तीसरा ई वैल्यू पे जो फॉर्मूला है मोटा मोटा साइज ऑफ द सैंपल का z इंटू सिग्मा अपॉन ई इसका स्क्वायर। अगर इसको सारे को मैं विदाउट डूइंग एनी दिस एंड कैलकुलेशन एंड ऑल, तो नॉर्मली कंटिन्यूअस डेटा, और अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो 3000 तक का सैंपल जो है वो एक्सेप्टेड होता है। और अगर कैटेगोरिकल डेटा ले रहे हैं तो 384 385 का सैंपल जो है पीएचडी लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएड के लिए दे डोंट बॉदर अबाउट हाउ यू हैव टेकन, क्योंकि पीएचडी में आजकल हर क्वेश्चन क्या आपने कितने का डेटा लिया, सैंपल साइज कितना है 500 या 1000 क्यों है जी, 1010 क्यों नहीं है, 990 क्यों नहीं है, एंड देन रिसर्चर डज नॉट नो व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। आप छोटा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 3000 ही ले, पॉपुलेशन यूनिट जैसे हैं तो यू कैन गो फॉर स्मॉलर सैंपल आल्सो। तो ये है हमारा जिस पे हम लोग सैंपल साइज पे काम करते हैं, क्योंकि सैंपल साइज के सिलेक्शन का बहुत लंबा चौड़ा वो है, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन इट व्हिच यू पीपल डोंट नीड। एक बात बच्चे हमेशा याद रखिए कि जब आप सैंपलिंग करेंगे तो आपका सैंपलिंग एरर आएगा ही आएगा। मान लीजिए हम अभी 45 पर्सन्स आर इन दिस मीटिंग, हर एक का मैं मार्क्स एमएड में कितने आए लेके अगर एवरेज निकालूं, वो हमारा ग्रुप का एवरेज होगा। मान लीजिए मैं 45 में से एक बंदा भी छोड़ दूं तो एवरेज में कुछ तो फर्क आया ही होगा ना। तो वो जो डिफरेंस है, अगर मैं 45 इज पॉपुलेशन, मैंने सैंपल 44 का ले लिया क्योंकि एक कभी बैठे नहीं थे तो मैं पूछ नहीं पाई और मुझे जल्दी थी, तो मेरा सैंपल अगर 44 भी हो गया तब भी हमारी मीन में फर्क आएगा। ये जो डिफरेंस आता है पॉपुलेशन और सैंपल वैल्यू में, इसको सैंपलिंग एरर कहते हैं। कम करने का तो बच्चे एक ही तरीका होता है कि सैंपल साइज बढ़ाते जाओ, एरर कम होता जाएगा। अगर आपका सैंपल और पॉपुलेशन बराबर हो गया, राइट, जैसे ये होती है, इसको आप लोग बराबर हो गया, 0 हो गया तो आपका पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दैट मीन्स सैंपल एंड पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा। सो दैट इज इट। बाकी ये भी बात नहीं होती कि लार्ज सैंपल इज ए गुड सैंपल, क्योंकि अगर बहुत बड़ा सैंपल आप ले लेते हैं तो जितना बड़ा आप सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं सैंपलिंग एरर कम होता जाता है, पर आपका मेजरमेंट एरर, जिसको हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं, टूल लगाना है ना बच्चे, हमारा कोई फिजिक्स या मैथमेटिक्स जैसे टूल तो है नहीं, हमने तो भरवाना है, परसेप्शन है, लोग भरते हैं। अभी सुबह सुबह आपका मूड बड़ा अच्छा था, आपने हैप्पीनेस में बड़े अच्छे अच्छे आंसर दिए, आपका स्कोर हाई आ गया। ब्रेक के बाद आपके टीचर ने आपको डांट दिया, आप बहुत चिड़े हुए थे, आपने ब्रेक के बाद वही स्केल दोबारा भरा तो आपका हैप्पीनेस बहुत लो आया। अब ये तो बच्चे टूल में कहीं ना कहीं तो दिक्कत रहती ही है। तो टूल हमारा 100% एक्यूरेट तो है नहीं कि 1 फुट है तो 1 फुट दुखी होके मापो या सुखी होके मापो, 1 फुट ही रहेगा। तो ये हमारे टूल की वजह से हमारे एरर आते हैं। तो अगर आप सैंपल साइज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं, कईयों को ऐसा लगता है मैं आज 10,000 का सैंपल लिया है ना, सेंटर लिमिट थ्योरम कहती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन लो, काम खत्म करो। ये भी एक अलग तरीका है लेने का, पर बहुत बड़ा सैंपल लेने से हमारे सैंपलिंग एरर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ द सैंपल, मतलब इतना कि जिससे कम करने से भी एरर बढ़े, ज्यादा करने से भी एरर बढ़े। ये फॉर्मूले सिर्फ ऑप्टिमम साइज के होते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर ओन जजमेंट ऑल्सो। So this is all about I am very happy I am within the time. This is all about sample and sampling. Data collection पे बच्चे मैं नहीं जा सकी क्योंकि इतना बड़ा, इससे ज्यादा जाना थोड़ा मुश्किल था, तो some other time. Thank you so much. आप
किसी को कुछ पूछना हो तो Dr. Mahua, thank you so much. Now the house is open for questions. Beta, you have any queries, any questions? You may please unmute yourself and ask, ma'am. Any queries? Either unmute yourself or just raise your hand so that I can unmute you. No queries? हाँ, that means everything is accepted. They are saying it's very, ये very बड़ी अच्छी बात है. elaborated. Elaborated, well explained. बच्चा एक बात, एक जो क्वेरी कई बार आती है कि लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से जी हम लोग टूल नहीं यूज कर पाए, है ना, तो हमने गूगल शीट बनाई और डेटा भेज दिया, इसको कौन सा सैंपल कहें जी, है ना. बच्चे जब हम गूगल शीट ग्रुप्स में भेजते हैं, हम सभी करते हैं, आपने भी एमएड वालों ने करा होगा जो 4th सेम के हैं, जो गूगल शीट या पीएचडी के तो बहुत ही कर रहे हैं आजकल गूगल शीट. बच्चे जब गूगल शीट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट होती है तो रिसर्चर का, आपने कैसी भी सैम्पलिंग की है डजंट मैटर, आपके हाथ से निकल जाता है क्योंकि वो ग्रुप्स में चला गया, आपको पता ही नहीं है कौन क्या भर रहा है, राइट. तो और एक बात तो इसलिए उसमें हम लोग देखिए, ये हमारी लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च में आता है कि कोविड में हम फिजिकली कांटेक्ट ही नहीं कर पाए. तो रिसर्च का आजकल एक कंपोनेंट ये हो गया कि मैंने डेटा कलेक्शन SPSS वर्जन 2023 से करी है, तो उनको पता है कि इसमें फिर वो गाइड वाला वो नहीं होता जी, ये किताबा च लिखे है कर्टोसिस 0.263 होनी चाहिए है, थोड़ी पॉजिटिव कितना थोड़ी नेगेटिव कितना आ गई. जब आपने लिख दिया मैंने SPSS से करा है, तो जो आपका पढ़ रहा है उसको पता होगा उसकी लिमिट क्या है. वहां एज अ गाइड किंतु परंतु करना बेकार है, बिकॉज एज ए गाइड यू मस्ट नो के SPSS कहता क्या है. मैंने बहुत गाइड्स को देखा है इस बात में ऑब्जेक्ट करते हुए कि जी -1 कैसे आया, मैनुअल कैलकुलेशन करें तो क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है 0.263. बच्चे सॉफ्टवेयर 0 सेट कर लेता है, उसके बाद कैलकुलेट करता है, राइट. तो जब आपने बड़ा क्लियर होकर लिख दिया कि मेरा कैलकुलेशन SPSS से हुआ है या मैंने डेटा गूगल शीट से कलेक्ट किया है और ये मेरे रिसर्च की लिमिटेशन है, तो जब लिमिटेशन हम लिख देते हैं तो वो हमारी जेन्युइनिटी को रिफ्लेक्ट करती है. और उससे सिर्फ एक होता है कि जर्नलाइजेशन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका तो बाहर निकल गया होगा. तो यस, मैं बहुत ज्यादा जर्नलाइज नहीं कर सकती, पर ऐसा भी नहीं है, मैंने उसमें ऊपर आइडेंटिफाइंग डाटा भरवाया था ना, अगले ने नाम, एज, क्लास, स्कूल सब लिखा है, तो मेरे पास अगर अनवांटेड या आउट ऑफ जो लिमिट डाटा आया है तो मैंने उनको निकाल दिया था, विच इज कॉल्ड. और बच्चे जब भी कोई साइज आता है, अगर 385 लिखा है तो आप कम से कम 10% ज्यादा करके यानी 420 425 लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेम वैल्यू सबको भर देते हैं. इनको अनएंगेज डाटा कहते हैं. पहला काम होता है इनको डिलीट कर दो. कईयों ने आंसर नहीं दिए होते कुछ जगह पर. सॉफ्टवेयर की एक खासियत है, अगर मिसिंग डाटा होगा वो सारी लाइन को डिलीट कर देगा. अब आपने 385 लिए, उसने उसको 350 में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लो ही 400 क्लीनिंग के बाद भी आपके पास 385 या 400 जितना भी आपने डिसाइड किया है उससे 10% डेट ज्यादा डेटा जरूर लीजिए. और अगर आप मेल से कुछ भेज रहे हैं तो उसका 1.5 गुना ज्यादा लीजिए, क्योंकि मेल मतलब बंदे वाला मेल नहीं, वो चिट्ठी वाला मेल जो हम ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसमें बच्चे हमारे पास 60% रिटर्न आती है, बाकी नहीं आती. तो आप उस हिसाब से पहले ही रख के भेजिए, ताकि निकलने के बाद भी जो आपने कहा मेरा 400 का सैंपल है उतना ही है, राइट. एनीथिंग एल्स और कुछ? Anything else? So, do you think everything is clear and we can end here? हाँ, देखा मैं कितना बढ़िया दस्या, सब नु समझ आ गया.
वो तो है ही है, कोई शक है बच्चों? On behalf of the management, faculty, and the students, I extend heartfelt thanks to Dr. Maua for being so comprehensive, so lucid. Ma'am, you elucidated the concept of sample, its relation with population universe in such a simplified manner that is one reason that there were no queries, because everything was very, very clear. Your beautifully explained numericals will, I think it will not only reduce the sampling error, but it will also reduce the errors in our proposals and thesis writing. So thank you so much for being so elaborative, and irrespective of the time constraint, you could manage to explain everything so beautifully within that time limit. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dee. Thank you. And looking forward. And thank you, everyone. And thank you, Dr. Burger, for inviting me. And thank you all the students for being patient in listening the kind of lecture on sample and sampling. Jo 2:30-3 baje is very difficult to listen. But anyways, thank you so much. Thank you, Dee. Thank you so much. Thank you, Bacho. And Beta, please put on your camera so that we can have a click with ma'am. Please put on your camera. Every chutney to na bhej mo. Students have not put on their cameras anyhow. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Dee. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, all the dear students. I know, in spite of your exams, they're having their house exams actually. Acha, acha. Their exam in the morning, and now they're attending this course also. So my special thanks to all my dear students for sparing out time, irrespective of the fact that we are taking your exams. We have kept you on toes since last 10-15 days. But thank you so much. Thank you for being so considerate and concerned with us. Thank you. Dee. Thank you, Bacho. Thank you, everyone. Thank you, Thanks. teachers. Thank you. मैं कराना